پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ معزز ناظرین، مسیح خداوند کے نام میں یہ خاکسار خادم آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مختلف موضوعات کے تحت وہ مجھے استعمال کرتے ہیں تاکہ میں بہتوں کے لیے برکت کا سبب ٹھہروں۔ آج بہت سے لوگوں کی درخواست پر میں نے ایک اہم ترین موضوع پر آپ سے بات کرنی ہے جو حرف آخر نہیں ہے، لیکن میری شخصی تحقیق جتنی ہے اور جتنی کی اس کے مطابق میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وہ مضمون یہ ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ بائبل مقدس میں مختلف شخصیات کے نام مختلف تراجم میں مختلف نظر آتے ہیں۔ کیا ریزن ہے کہ جو نام شخصیت کا تھا وہی نام چلا آتا؟ آخر کیوں وہ نام کسی حد تک تبدیل ہوئے ہیں؟ میں آج اس راز پر سے پردہ اٹھاؤں گا تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ مجھ پر اٹھا۔ میں پھر سے کہوں گا، یہ حرف آخر نہیں ہے۔ آپ اور خدا میں مسیح کے وسیلہ سے سیکھ سکتے اور برکت پا سکتے ہیں، لیکن کسی حد تک آپ کی معاونت ہوگی، ریزن آپ سمجھ پائیں گے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بائبل مقدس کی سب سے آخری کتاب مکاشفہ کی کتاب کی طرف لیے چلتا ہوں۔ اس کا 19 باب اور اس کی 12 آیت۔ مقدس یوحنا عارف پتمس کے جزیرہ میں جب خداوند یسوع مسیح کو روح میں، رویا میں دیکھتے یعنی دیدار حاصل کرتے ہیں، تو آپ نے اس آیت میں ان کی بابت فرمایا، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اس پر ایک نام لکھا ہوا ہے اور اس کے سوا کوئی اور اس نام کو نہیں جانتا۔ بڑی عجیب سی بات شاید آپ میں سے کچھ کو نظر آ رہی ہو کہ اگر آپ مجھ سے نام پوچھیں اور میں کہوں کوئی بھی نہیں جانتا، تو آپ حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یا ہم خداوند یسوع مسیح کی بابت جب یہاں پر دیکھتے ہیں اور آپ کی بابت لکھا ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا ماسوا اس کے، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں، اور میری تحقیق جو میں نے کسی حد تک کی ہے اس کے مطابق بات یہ ہے کہ جو نام جس کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، وہ نام ہے جس نام کو اہل یہود بڑی احتیاط سے اپنی زبان پر لایا کرتے تھے، کیونکہ اس نام کو بہت بہت مقدس سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کا نام آج بھی مقدس ہے، قابل عزت اور قابل تعریف ہے، احترام کے لائق ہے، اور وہ نام تھا یہوہ۔
और चूंकि मुकद्दस यूहन्ना यहां पर राज की और भेद की बात करते हैं, जिस सबब से वो नाम नहीं लेते, और वो ये फरमाते हैं कि उसका वो नाम तो लिखा हुआ था, लेकिन उसके अलावा कोई और उस नाम को नहीं जानता। और जो मुहक्किकीन और उलमाए बाइबल बताते हैं, वो ये कहते हैं कि ये नाम याहवे था, लेकिन मुकद्दस यूहन्ना इसलिए उससे पर्दा कुशाई नहीं कर रहे क्योंकि ये एक रोया थी जिसमें से सब बातें सब लोगों के लिए समझना आसान नहीं है। तो गोया खुदावंद यीशु मसीह याहवे के तौर पर हमें नजर आते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है कि अहद अतीक में भी और अहद जदीद में भी कुछ नामों में तब्दीलियां नजर आती हैं? उसके पीछे क्या वजह है? जब हम बाइबल के जमाना में और उस कदीम दौर में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि नामों की बड़ी अहमियत होती थी। उस मुआशरे में यह समझा जाता था कि मेरा नाम कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है। अगर मेरा नाम किसी को मालूम हो तो वो इस नाम का गलत इस्तेमाल कर सकता है। कोई पावर और कोई कुव्वत यानी मेरे नाम को इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि अहद अतीक के कल्चर और मुआशरे में ऐसा होता रहा है। और उसकी कई एक मिसालें मैं आपकी खिदमत में किताब मुकद्दस में से ही दूंगा ताकि आप मेरे साथ मिलकर इन बातों को समझ पाए। मसलन जब हम पैदाइश की किताब में जाते हैं तो उसमें बहुत कुछ हमें नजर आता है, बहुत कुछ नजर आता है। लेकिन हैरानगी की बात यह है, क्या कभी आप कहीं खड़े हों और ना जान ना पहचान और कोई शख्स आपका आकर नाम पूछे और कहे क्या आप नवीद हैं? चूंकि मेरा नाम फेसबुक, यूट्यूब, वेबसाइट, इंटरनेट पर मैं यूं कहूंगा कि बहुत फैला हुआ है, और मेरे लिए कोई अजूबा नहीं होगा कि कोई शख्स मेरा नाम लेकर मेरे सामने आकर खड़ा हो। और अगर आप अननोन हैं, लोगों के लिए अनजान हैं, आप अपने आप को कोई मारूफ शख्सियत नहीं समझते, और अगर कोई शख्स आपके सामने आकर खड़ा हो और आपको कहे आप ये हैं, आपका नाम लेकर, आप थोड़े हैरान हो जाएंगे। ये कौन है? इसको मेरा नाम कैसे मालूम है? क्या रीजन है? पता नहीं आपके जहन में उस वक्त क्या क्या पकेगा। इसकी कई एक वजूहात है, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि नामों के पीछे कई ऐसी वजूह हैं जो इतने ज्यादा लोगों को नहीं बताए जाते थे। उसकी एक वजह यह थी कि उन नामों को अच्छे माना में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे खुदा ने किए, और गैर माबूदों ने किए, उनके मानने वालों ने किए जो गलत मानों में। जब मैं पैदाइश की किताब और उसके 17 बाब में चलता हूं और उसकी 5 आयत, तो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। 17 की 5 में लिखा है, और तेरा नाम फिर अब्राम नहीं होगा, नहीं कहलाएगा, बल्कि तेरा नाम अब्राहम होगा। किसने तब्दील किया? खुदा ने। अब से तेरा नाम अब्राम नहीं बल्कि अब्राहम
होगा, यानी कौमों का बाप, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहराया है। आप जानते हैं कि बुजुर्ग अब्राम का नाम पहले अब्राम था, फिर अब्राहम हुआ, और अरबी में इब्राहिम कहते हैं। शख्सियत एक ही है, लेकिन उनके नाम का तलफ़्फ़ुज़ मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, ज़बानों में मुख्तलिफ किया गया है। लेकिन यहां खुदा उनके नाम को तब्दील करता है और अब्राहम कहता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर आप मेरे साथ और थोड़ा सा आगे बढ़ें, इसी पैदाइश 17 बाब और इसकी 15 आयत देखें, लिखा है, और खुदा ने अब्राहम से कहा कि सारे जो तेरी बीवी है सो उसको सारे ना पुकारना। खुदा नाम तब्दील करता है, उसका नाम सारा होगा। देख लीजिए, खुदा नाम तब्दील करता है, और मैं उसे बरकत दूंगा और उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा। बात आगे बढ़ती चली जाती है। खुदा ने नाम तब्दील किया ताकि सारा के जरिया और अब्राहम के जरिया से कौमें और उम्मतें बरकत पाए। यह खास मकसद था जिस मकसद से यह नाम तब्दील हुआ। फिर अगर हम जरा और आगे बढ़े, पैदाइश 35 यानी 35, पैदाइश 35 बाब और उसकी 10 आयत, तो वहां हमें एक और बात मिलेगी। मैं हवाले इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके पास सबूत हों, और बाद में अगर आप इन हवाला जात को देखना चाहें तो देख भी पाए। 35 की 10 लिखा है, और खुदा ने उसे कहा कि तेरा नाम याकूब है, तेरा नाम आगे को याकूब ना कहलाएगा, बल्कि तेरा नाम इसराइल होगा। सो उसने उसका नाम इसराइल रखा। अब आप समझ रहे हैं कि इस सब कुछ में खुदा के चुनाव के पीछे खास मकसद था, जिस सबब से वो शख्सियात के नाम खुद तब्दील करता है, खास मकसद और मुद्दा के लिए। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम फिरौन को भी यूसुफ का नाम तब्दील करते हुए देखते हैं, अपने मकसद के लिए, अपने देवताओं के लिए, जिंदा खुदा के लिए नहीं। और इसके ताल्लुक से आप पैदाइश 41 बाब देख सकते हैं, 41, पैदाइश 41 और उसकी 45 लिखा है, और फिरौन ने यूसुफ का नाम सिफनात फैनी रखा, और उसने ऊन के पुजारी फोतीफरा की बेटी आसेनात को उससे बिया दिया, और यूसुफ मलिक मिस्र में दौरा करने लगा। तो क्या नाम रखा जी फिरौन ने यूसुफ का? सिफनात फैनी। मैं उर्दू बाइबल मुकद्दस से इन अल्फाज को आपकी खिदमत में तलावत कर रहा हूं। उसने अपने माबूद के नाम से यूसुफ के नाम को तब्दील किया है। यह खुदा ने यहां पर नहीं किया। हम आगे बढ़ते हैं। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में गिनती की किताब, हम तौरात में हैं, और उसका 13 बाब, गिनती 13 बाब और इसकी 16 आयत। यही उन लोगों के नाम हैं जिनको मूसा ने मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा था, और नून के बेटे हुसिया का नाम मूसा ने यीशु रखा, जिसको कई लोग यशुआ पढ़ते हैं। यह गलत है, यशुआ नहीं है। अंग्रेजी में जाशुआ है,
लेकिन इब्रानी में जाशुआ नहीं है, यहोशुआ है। एक रीजन यह है कि इब्रानी में जो लफ्ज जा यानी जे है वो नहीं है। उसके लिए लफ्ज या आवाज जो यूज होती है, या तो हर्फ वाई इस्तेमाल होता है, या जो आवाज यूज होती है लफ्ज जे ही है लेकिन आवाज उसकी ये में है। और इसकी एक और मिसाल, मैं स्वीडन में हूं और अगर आपका नाम जावेद है, जावेद, तो स्वीडन में लोग आपको जावेद नहीं कहेंगे, क्योंकि जे यहां पर ये की आवाज देती है, तो लोग आपको यावेद कहेंगे, यावेद। अजीब लगता है ना? हम जिस मुआशरे में हैं वहां पर हमें अजीब लगता है। हम जब ऐसे ममालिक में आते हैं जहां पर वो जुबान नहीं यूज होती तो हमें अजीब लगता है, लेकिन अक्सर औकात लोग यावेद नाम पुकारते हैं। मेरे एक भाई का नाम यहां पर जावेद है और उनको यावेद कहकर मुखातिब होते हैं। इसके अलावा और भी रीजन है। मसलन मैं दूसरा सैमुअल की दूसरी किताब और उसका 12 बाब और इसकी 24 आयत और 25 आयत में आपको लिए चलता हूं। लिखा है, फिर दाऊद ने अपनी बीवी बत्सबा को तसल्ली दी और उसके पास गया और उससे सोहबत की और उसके एक बेटा हुआ और दाऊद ने उसका नाम क्या रखा था? सुलेमान। आगे देखिए, और वो खुदाबंद का प्यारा हुआ और उसने नातन नबी की मार्फत पैगाम भेजा, सो उसने उसका नाम खुदाबंद की खातिर यदीदिया रखा। यदीदिया नाम रखा। तो अब देखिए, जिसका नाम सुलेमान रखा गया, अब उसका नाम नातन नबी की मार्फत पैगाम भेजा और उसका नाम यदीदिया रखा गया है। खास रीजन है, खास वजूह है। इन बातों को मलहूज़े खातिर रखना बहुत जरूरी है और इसको हम शायद और जबानों में जदलिया भी कह सकते हैं। जब गैर माबूदों के मानने वालों की बात करता हूं तो उन्होंने भी नाम तब्दील किए। मसलन सलातीन की दूसरी किताब और उसके 24 बाब और उसकी 17 आयत। सलातीन की दूसरी किताब और उसका 24 बाब और उसकी 17 आयत यहां पर लिखा हुआ है, और शाह बाबल ने उसके बाप के भाई मतनिया को उसकी जगह बादशाह बनाया और उसका नाम बदलकर सिदकिया रखा। अब अंदाजा कीजिए कि शाह बाबल ने उसके बाप के भाई मतनिया के नाम को बदला और उसका नाम सिदकिया रखा। शाह बाबल खुदा के लोगों के खुदा को तो नहीं मानता था, आप इसके बारे में जानते हैं। फिर जब तवारीख की दूसरी किताब में हम जाते हैं और उसका 36 बाब 36 बाब और उसकी 4 आयत, तो यहां पर लिखा है, और शाह मिस्र ने उसके भाई इलियाकीम को यहूदा और यरूशलेम का बादशाह बनाया और उसका नाम बदलकर यहूयाकीम रखा। और निको उसके भाई यहूआखस को पकड़कर मिस्र को ले गया। तो क्या हुआ जी? इलियाकीम
का नाम बदलकर यहूयकीम रखा गया। कोई खास रीजन है, और ये वो लोग नहीं थे जो मैं कहूंगा कि उस याहवे खुदा को मानने वाले लोग थे। इन बातों पर थोड़ी देर के लिए हम गौर करना चाह रहे हैं। फिर जब हम अंबियाए अकबर में चलते हैं, फिर हम देखते हैं कि दानियल पहले बाब की 7 आयत में क्या होता है। लिखा है, और ख्वाजा सराओं के सरदार ने उनके नाम रखे। उसने दानियल को बेल्त शजर और हननिया को सदरक और मिसाइल को मिसक और अजरिया को अब्द नजू कहा। आपको याद है कि जो नाम आज हम सदरक, मिसक और अब्द नजू कहते हैं, वो दर हकीकत उनके नाम नहीं है। ये गैर माबूदों की तरफ से दिए गए उनके नाम से उनके नाम मंसूब हैं। तो क्या ही बेहतर हो कि हम सदरक, मिसक और अब्द नजू के बजाय उनके नाम ऐसे ही पुकारें, दानियल, हननिया, मिसाइल और अजरिया। यह बहुत ही खूबसूरत तरीन बात है। हम गैर माबूदों के नाम से उनको जानते हैं, लेकिन जो याहवे खुदा के नाम से उनके नाम हैं, हम उनको नहीं पहचानते। ये दुरुस्त नहीं है। फिर जब हम अहदे जदीद में जाते हैं तो हम मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसके पहले बाब और उसकी 42 आयत में हमें कुछ और भी नजर आता है। यूहन्ना 1:42 किताब मुकद्दस में यूं लिखा हुआ है, यसु ने उस पर निगाह करके कहा, तू यूहन्ना का बेटा शमाउन है। कौन है जी? शमाउन। इसका मतलब कुछ और है। तू कैफा यानी पतरस कहलाएगा। पतरस, पेट्रोस, चट्टान। शमाउन का नाम तब्दील हुआ और मसीह ने अपने मकसद के लिए, अपने काम के लिए, उसकी लियाकत के मुताबिक, चूंकि वो चट्टान की तरह जमने वाला था, उसका नाम कैफा यानी पतरस रखा है। अब कैफा के लिए अंग्रेजी में सीफस नाम इस्तेमाल होता है। हम कहेंगे क्या रीजन है? इसके पीछे कई एक वजूहात हैं, जिनमें से चंद मैंने आपकी खिदमत में ऑलरेडी बयान की है। फिर रसूलों के आमाल और इसके 4 बाब और उसकी 36 आयत, अमाल 4:36, यहां पर भी हमें एक और गहरी बात मिलती है। किताब मुकद्दस में लिखा हुआ है, और यूसुफ नाम एक लावी था जिसका लकब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा था। नाम यूसुफ था और उसका नाम रखा गया बरनबास, जिसका मतलब है नसीहत का बेटा। पॉसिबल है कि वह दूसरों को नसीहत करता था, एनकरेजमेंट का सबब था, और जिसकी पैदाइश कुप्रोस की थी और आगे मजीद, लेकिन मेन रीजन उसकी लियाकत और उसकी शख्सियत के मुताबिक। तो जब नाम खुदा तब्दील करता है, खुदा उन लोगों में वो अहलियत और वो खुसूसियत देखता है और उसके मुताबिक अपने हिसाब से उनका नाम रखता है। जैसे शमौन का पतरस और यूसुफ का बरनबास इन दूसरे रसूलों की मार्फत रखवाया गया है। अब अगर आप अपने बारे में और मैं अपने बारे में देखूं तो रूहानी तौर पर हमारा क्या नाम था, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हम मसीह के बगैर थे, अगर हम इफ्सियों का खत निकालें और उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत,
इफिसियों 2:1 लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। इससे पहले हम नाफरमानी के फर्जंद कहलाए, लेकिन जब हम पहले यूहन्ना के खत को देखते हैं तो वहां हमें पता चलता है कि हम कौन हैं। पहला यूहन्ना 3 और उसकी पहली आयत 3:1, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। पहले हम नाफरमानी के फर्जंद थे और अब हम खुदा के फर्जंद कहलाए। रसूल आजम पहले साउल था और बाद में उसका नाम पौलुस हुआ। खुदा का खास मकसद है कि क्यों इन नामों को उसने तब्दील किया है। एक बात मैं यहां पर आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं कि मैंने आपकी खिदमत में जाशुआ और यहूशुआ और यीशु की बात की है। यह मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की बात है। इसका यह मतलब नहीं कि अगर जावेद नाम है तो जावेद ही होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कई ऐसी जबानें हैं जिनमें लफ्ज या हर्फ जे नहीं है, यानी इसकी आवाज ये है तो वो यावेद पढ़ते हैं। अब अगर अंग्रेजी में जाशुआ है तो उससे पहले इब्रानी में वो जाशुआ नहीं है, वो यहूशुआ है। या याकूब नाम देख लीजिए, याकूब, और आप जानते हैं अंग्रेजी में जैकब है, लेकिन याकूब नाम वहां पर इस्तेमाल हुआ है। इब्रानी में याकूब है, और अरबी में और उर्दू में हम उसको याकूब कहकर मुखातब होते हैं। यह सिर्फ लैंग्वेजेस में हुरूफ के होने या ना होने या हुरूफ की आवाज के तब्दील होने के सबब से इन नामों में चेंज यानी तब्दीली आई है। हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि जैसे अरबी जबान है उसमें कई हुरूफ है हमारे पास जो अरबी जबान में नहीं है। मसलन अगर आप अरबी लोगों को कहें कि बोलो फल फल या पहली क्लास, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है ये कहना। पे का लफ्ज, इसकी अहम रीजन है क्योंकि अरबी में पे नहीं है, वो ब। आप कहेंगे बोले फल तो वो कहेंगे बल। आप कहेंगे अच्छा चलो बोलो पहली, वो कहेंगे बैली। बड़ा टाइम लगेगा उनको इस बात के जानने के लिए, क्योंकि जो अल्फाज हमारे पास हैं जरूरी नहीं कि उनके पास भी वही यानी हुरूफ हों। अरबी में पे नहीं है, अरबी में चे नहीं है। आप चे 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 आप उनको कहते फिरें, उनको समझ नहीं आएगी। अरबी में ते लफ्ज नहीं है, टे टे अरबी में नहीं है। अरबी में गाफ नहीं है। तो हमें इस बात को लैंग्वेजेस की मजबूरियों को समझने की जरूरत है
तब हम इन बातों को समझेंगे कि अगर एक जगह पर ईसाया है, एक जगह यसाया है, एक जगह पर एशाया है, तो उसके पीछे क्या रीजन है। यह सिर्फ लैंग्वेजेस के सबब से ही है, इसके पीछे कोई और रीजन नहीं है। हम इस बात को अच्छी तरह से समझें कि क्या है। मेरा ईमान है कि आप इन चंद मिनट्स की बाइबल स्टडी के वसीला से बरकत पाए होंगे और नामों की तब्दीली के पीछे जो भी रीजन था उसको आप किसी हद तक समझ गए होंगे। यहोवा के नाम से, यहोवा के नाम से, खुदाए कादर के नाम से, यहोशुआ के नाम से, यीशु के नाम से, जीसस के नाम से, और अरबी में अगर कहूं तो ईसा के नाम से, माना एक ही है, निजात दहंदा। खुदावंद आपको बरकत बख्शे। आमीन।